یہ ہماری کیمپ کی سب سے ضعیف عمر خاتون ہے۔ جس دن کوئٹہ میں ہم لوگ تھے تو اس دن اس کے پاس ایک جوڑی کپڑا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ اس کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جو ننگے پاؤں وہ ریلی میں تھی۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ۔ اس ٹائم یہ بولنا بھی نہیں جانتی تھی، اور آج اس کے کیونکہ دو ہی بیٹھے تھے، ایک بیٹھا اس کا یہ ایک گمشدہ ہے، یہاں یہ میری امی بن چکی ہے، اور یہ بولتی ہے کہ ابھی آپ میری بیٹی ہو کیونکہ آپ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ اس سمیت یہاں جتنی بھی عورتیں ہیں سب ضعیف العمر ہیں، اور ہر صبح اور ہر شام ایک سیشن ہم کرتے ہیں جہاں ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور ان کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سائیکولوجیکل ڈپریشن میں ہر دن ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں شاید کوئی سرکار ہے۔ یہ ہر دن یہی سوال کرتے ہیں کہ کوئی آیا، کسی نے ہمارے قیدیوں کے بارے میں کوئی بات کی، اور کتنا دیر ہم یہاں بیٹھیں گے۔ ان میں سے زیادہ تر ایسی عورتیں بھی ہیں جن کا ابھی بالکل کف ریزالو نہیں ہو رہا ہے، چیسٹ انفیکشن ہوا ہے، اور ہارٹ پیشنٹ، یہ خود ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کی دوائی پہ چلتی ہے، ECG وغیرہ اس کے مسلسل یہاں ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ہارٹ ریٹ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ڈپریشن میں رہتی ہے ہر ٹائم، اور روتی اس لیے رہتی ہے کہ میرا آخری ٹائم ہے۔ یہ اپنے پوتے کے ساتھ آئی ہے، دو ہی پوتے ہیں اس کے گھر میں اور کچھ نہیں، ایک اس کے ساتھ آیا ہے، ایک وہیں پہ، اور وہ اس کے لیے اتنی پریشان ہوتی ہے کہ اس کو 5 منٹ کے لیے بھی یہاں سے اس طرف نہیں جانے دیتی کہ اس کو بھی نہ اٹھا کر لے کر جائیں۔ اس سمے جتنی عورتیں ہیں یہاں پہ دن بدن ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جیسی رات ہوتی ہے کیونکہ ان میں ریسٹ نہیں ہے، صبح سے لے کر رات تک یہ اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں تصویروں کے ساتھ، اور جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے، سامنے والے کیمپ سے جو گانے یہ لوگ سنتے ہیں اور جو تھریٹننگ فیل کرتے ہیں، وہ ایک الگ قسم کا ایک ذہنی کیفیت سے یہ سب گزر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بلوچستان سے آنے والی عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے ایک احتجاجی کیمپ میں، اور یہ کیمپ قائم ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے پریس کلب کے باہر۔ کافی دن سے یہ کیمپ یہاں پہ چل رہا ہے، اور اس کیمپ کو پاکستانی میڈیا نے تو اتنی اٹینشن نہیں دی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو کافی اٹینشن دے رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا اس کو اٹینشن کیوں نہیں دے رہا، اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار پہ بہت سی پابندیاں ہیں۔ ہاں، میرے سمیت چند جو صحافی ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا فوکس کیا، اس کو کور کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کیمپ میں موجود عورتیں اور بچے جو ہیں ان کے بارے میں حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے کیا زبان استعمال کی اور کس قسم کے ان پہ الزامات لگائے۔ ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس کیمپ میں جن لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان میں سے تو اکثر جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اور وہ افغانستان بھاگ گئے ہیں، اور یہ جو عورتیں ہیں ان کو کسی ایجنڈے کے تحت یہاں پہ لایا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کو ان عورتوں اور بچوں اور کچھ بزرگوں سے ملواتا ہوں، اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ ان کی باتیں سن لیں، ان کے چہرے دیکھ لیں، ان کا جو لب و لہجہ ہے اس کو دیکھ لیں، اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ عورتوں، بچوں اور بزرگوں سے ملواتا ہوں، اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ یہ دہشت گرد ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم، میں شمس عطاءاللہ، یہ میرے بھائی اسرار عطاءاللہ ہے۔ اس کو 12 مارچ 2023 کو گھر سے، ہمارے گھر میں چانپا مار کے اٹھا لیا گیا، اور جب ہم یہاں ریلی پہ آئے ہم نے کیس درج کی تو میرے بھائی کے فوٹو کو پوسٹ کر کے یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس نہیں، یہ دہشت گردی کرنے چلا گیا۔ میں یہ سوال پوچھتی ہوں، اگر وہ دہشت گردی کرنے چلا گیا وہ تھا تو وہ کیا گھر میں گیٹ کے سامنے سوتا؟ کیا وہ گھر میں کیا وہ بازار جاتی اپنے گھر سے نکل کے؟ کیا وہ اسکول میں پڑھتی؟ اس کے تو ایگزام چل رہے تھے۔ یہ کون سی کلاس میں پڑھتا تھا؟ 10th کلاس میں، اور اس کے 10th کے ایگزام کے دوسرے پیپر کے رات سے اٹھا لیا گیا۔ اور میں اپیل کرتی ہوں سارے انسانی حقوق اداروں سے کہ میرے بھائی کے لیے آواز اٹھائیں، اس کی جان کو ابھی خطرہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اس پوسٹ کے بعد ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میرے بھائی کو بھی بالاچ کی طرح ایسے فیک انکاؤنٹر میں شہید کر کے یہ نہ بتائے کہ اسے بھی مقابلے میں مارا گیا۔ السلام علیکم، میرا نام صابر ہے، بشیر احمد بلوچ میرا بھائی ہے۔ میرا بھائی کو عید کے تیسرے دن 2/7/2023 کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ عید شام کے 3 بجے 15 گاڑیوں کے ساتھ آئے تھے۔ میرے بوڑھے ماں اور باپ بہت پریشان ہے اپنے بیٹے بشیر احمد بلوچ کی وجہ سے۔ نہ انہیں راتوں میں نیند ہے اور نہ ہی دن میں سکون ہے۔ ہم اسلام آباد بہت امید سے آئے ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں، آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو بازیاب کیا جائے۔
कि वो हमारा रही हमारा बंदना चुना कम तकलीफ पटिन बल्लुम मसन कुल बर्दाश्त की न चुनाती ने मुलाकात करे वो ऐनो पाप ने नैनो नैनो काने तीने चुना था राजीला थी ठरी राड़ी पाशरी न चुनाती ने पेनिच पाई पर यान मामे कुंपाने लंगड़ी ये कुल बर्दाश्त की ने तीने चुना था दर्दाती बर्दाश्त कप्पाने अन्ना मन ना गुजारिश का मुन्ने चुनाती जिंदा पानी तासवार को हमारा रे हमारा बस बार रुम्मा ने जिंदा का सुकून ने चला अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्ज़ा है। मैं लापता चंगेज़ बलूच की बहन हूँ। मेरे भाई चंगेज़ बलूच को 11 जनवरी 2014 को खुशदार राबिया रोड से लापता किया गया था। आज के रोज़ मेरे भाई को 10 साल ख़त्म हो गए और 11वां साल शुरू हो गया। हमें कुछ भी नहीं पता कि मेरे भाई कहाँ और किस हाल में हैं। हम हर रोज़ अपने भाई की राह देखते हैं कि वो कब वापस आएंगे। मैं यही कहती हूँ कि अगर मेरे भाई ने कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है तो लाए अपने इदारों अपने अदालतों में पेश करिए। अदालतें आप लोगों ने किस दिन के लिए बनाए? हमें तो यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं बस यही अपील करती हूँ। मैं इस्लामाबाद इसलिए आई हूँ, इस उम्मीद से आई हूँ कि मेरे भाई चंगेज़ बलोच और तमाम लापता बलोच भाइयों को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। मैं नाम मरियम बलोच मैं अब्बा जेल 10 साल भी गई मैं अब्बा कसूर ने मैं कचे तम अब्बा बुते अब्बा लापता है मैं अब्बा रहा मैं अब्बा कसूर ने इस्तना 5 साल शुरू भी थी मैं अब्बा कसूर ने इस्तना कोल पूरा गिफ्तेश दगा चप किसाई छोर है गुनती मैं चपले तो फिर रेंतेश सेका मोटर बुतेश चंबस्ता ते लोते सगरा दातो बुतेश मैं अब्बा कसूर ने इस्ता मैं अब्बा पैदा गए श्रीमुल्ला मैं अब्बा दस कर वक्त अस्सलाम वालेकुम शिमुल्ला मात्रा पहिलुना तात का जवानी के फौजी लकंद शुरू था वाला गाड़ियां ज़ोर तो बुतेश। और ये है तुर्बत में जो CTD ने एक नौजवान था बलाच बलोच, उसके बारे में दावा किया जी कि उसको कुछ लोग जो हैं वो छुड़ाने के लिए आए थे तो मुकाबले में वो मारा गया। ये उसकी वालदा हैं, ये बालाच की वालदा हैं। माँ जी आप बताएंगी कि क्या वाक़या हुआ और आप इधर इस्लामाबाद में क्यों आई हैं? बोलो بزن بالا چه 1 بجه شفیقات چستی کنه 1 بجه CTC والا سکالا گود والا ایتان سیا گودی درسان چکر بورتی شما تلا چیات کنن تلا شی گرگات کنن بالا چما ایدا مان بالا چ وقت گتا ایدا یا شفیق 1 بجه نو من بورتی 20 روچه داشتی 22 جب اس کو گرفتار کیا تو وہ آپ کے ساتھ سویا ہوا تھا؟ हाँ अच्छा 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 गोडाउन से बोलते दाश्ती 2 रूचा 20 सिमी रूचा आते लोगा चे अदालत दर रूचे रेवांटी के दर रूच मागो दर रूच बाजे गोडाउन चोकर मारे पीसी अच्छी ही दाते ना एक पीसी आत गोडा अदालत आते मारा बहन माँ बरात दोस्त होता मुलाकात पेशीदाश पदा गोडा दुम्मी रोचा सिमिया जाते अदालत तो का जाते। ये कौन है? ये मेरे से मेरा छोटा भाई है। ये कब से गायब है? ये 1/10/2022 में 2022 से यानी कि 2 साल से गायब है। 16 महीना हो गया। 16 महीने हो गए। तो इसके साथ कोई रब्ता नहीं हुआ आपका? अभी 3 महीने हो गया मुझे रब्ता किया है। किसने किया है? ये मेरा भाई ने किया है। वो उस नंबर पे उसने जो पकड़ा है तो एजेंसी वालों ने किसने पकड़ा है? एजेंसी ने पकड़ा है? पहले तो BNP ने पकड़ा है। हाँ। फिर दिया एजेंसी ने दे दिया। अच्छा तो फिर उसने आपसे फ़ोन पे बात की? हाँ जी फ़ोन भी बात की। मीर हुसैन ने आपसे फ़ोन पे बात की? हाँ वो जिंदा था? हाँ जिंदा था। 3 महीना हो गया। तो ये जो तहसील रुझान में आपने पुलिस को नहीं बताया? पुलिस को पता नहीं है, BNP तो पता है, उसने पकड़ के उसने दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन बोल रहा हूँ। मैं ज़िला खुशदार नाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मेरा भाई 11 साल से लापता है कराची लक्की नादरा बाईपास से, और हम इसके तलाश में निकले हैं और कोशिश कर रहे हैं शायद मिल जाए। हमारा एक दूसरा चाचाजाद भाई सरेआम नाल में कत्ल हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर या कोई बंदा कह रहा है ये सारा प्राइवेट एजेंसी हमारे साथ ये जुल्म कर रहा है। कोई हम पे सबूत करे कोई कसूर तो फिर भी हमें सज़ा मिले सही है। बिना सबूत पे हम पे इतना जुल्म हो रहा है। हमारे लोग जा रहे हैं, बंदे जा रहे हैं, हम परेशान हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस्लामाबाद तक पहुँचे। ये हमारा मजबूरी है, हम इधर आए हैं। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ में कामयाब हुए हैं कि हमने अपना पैगाम पाकिस्तान के आम शहरियों को पहुँचा। वो आम शहरी जिसको सिर्फ बलूचिस्तान या बलूचों के नाम पर सिर्फ नफ़रत ही फैलाई गई थी कि बलूच जो है ना नफ़रत आमेज़ लोग हैं, इनसे नफ़रत ही किया जाए और ये दूसरे मुल्कों के एजेंट्स हैं। तो मुझे बहुत इस चीज़ में मुझे खुशी होती है कि इन माओं के पास जो है ना इस्लामाबाद से, और सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं, अहमदाबाद से, कराची से, कश्मीर से,
सब आकर इनके साथ बैठते हैं और ये उस दर्द को महसूस करते हैं जो किसी नेशनलिटी की मोहताज नहीं है, किसी मज़हब की मोहताज नहीं, किसी बार्डर की मोहताज क्या नहीं। ये कहना दुरुस्त है कि लापता अफराद के लवाकिन का जो दुख है उसने पूरे पाकिस्तान के मजलूमों को मुत्तहिद कर दिया? बिल्कुल, उसने पूरे पाकिस्तान के हर मजलूम को, मसला अलग हो सकता है, मतलब यहाँ ईसाई भी आते हैं उनका मसला अलग है, शिया भी आते हैं उनका मसला अलग है, लेकिन एक चीज़ है जो तकलीफ है। जब किसी ख़ानदान के शख्स को 17 सालों तक अगवा करके वो तकलीफ, वो इमोशंस, वो जज्बात जब वो इन औरतों को देखते हैं कि सर्दी में कौन बैठता है, वो इंतज़ार जो इनको यहाँ बैठने पर मजबूर कर रही है। इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना घर छोड़ कर आए हैं पीछे, कोई कमाने वाला नहीं है, नहीं हम बैठेंगे। ऐसी भी यहाँ पे औरत है जो गवादर से आई है, उसकी 6 माह की बच्ची है, वो गवादर छोड़ कर आई है अपने भाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं लापता बुलंद करीम की बेन। मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे पसनी एयरपोर्ट के मकाम से एजेंसी वालों ने अगवा किया था। उस वक्त मेरे भाई की उम्र 16 साल था, वो मैट्रिक के स्टूडेंट थे। हमने अपने भाई की गुमशुदगी के FIR भी पसनी के थाने में दर्ज किए। क्वेटा और गवादर कमिश्नर के सामने भी पेश हुए और उन गवाहों को भी पेश किया जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे। अभी भी 16 तारीख को GIT के सामने पेशी हो रही है ग्वादर में, और 22 तारीख को कमिश्नर के सामने क्वेटा पेशी हो रही है। हम हर महीने पेशी देते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे भाई को बाजियाब नहीं करते हैं। विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट से वॉलंटियर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल भी छोड़ा हुआ है इस मकसद के लिए कि वो अपने खानदान वालों की सिफाए। तो जैसे अब्दुल नबी है, वो अभी 3री जमात की इंग्लिश वर्क करेगा, और बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि कौन कहाँ पे पहुँचा हुआ है। मैंने आपको बलूचिस्तान से आई हुई औरतों, बच्चों, बुज़ुर्गों और कुछ जवानों से आपकी मुलाकात करवाई है जो यहाँ पे इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के धरने में बैठे हुए हैं। तो ये थे औरतें, बच्चे और बुज़ुर्ग जिनके बारे में कुछ रियासती इदारों का दावा है कि वो दहशतगर्द हैं। तो ये औरतें और बच्चे आपने देख लिए, और इसमें जो एक बहन जो है वो अपने मैट्रिक के स्टूडेंट भाई के बारे में आपको बता रही थी कि उसके भाई को एग्ज़ाम से एक रात पहले घर से उठा लिया गया, और जब उन्होंने उसकी बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद की तो कहा गया कि ये तो दहशतगर्द था। तो उस बहन ने एक सवाल उठाया कि अगर उसका भाई दहशतगर्द था तो वो अपने घर में बैठा इम्तिहान की तैयारी क्यों कर रहा था, और क्या दहशतगर्द जो है वो स्कूलों में जाकर पढ़ते हैं? 10वीं जमात के बच्चे को आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द है। तो ये सवाल है उन रियासती इदारों से जो हमें कहते हैं कि आप दरअसल लापता अफराद की जो बाजियाबी का मुतालबा है उसकी आड़ में दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो लोग हमें कहते हैं कि आप दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं ये किताब दिखाना चाहता हूँ। ये ग्रीन बुक है, आईन पाकिस्तान है, और इस आइन के अंदर एक आर्टिकल है 10, और ये आर्टिकल 10 ये कहता है कि जब कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी या इदारा किसी भी पाकिस्तानी शहरी को गिरफ़्तार करता है तो गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश करना है। ये आईन पाकिस्तान कहता है, आर्टिकल 10 कहता है। तो मेरा तो सिर्फ मसला जो है वो ये आईन पाकिस्तान है, और मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के हर मसले का हल जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती है। और यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि ये औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग, ये सब लोग जो हैं इनका मसला हल हो सकता है अगर आप इस आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 10 पर अमल दरामद करें, और जिन लोगों को आपने उठाया हुआ है आप उनको रहा नहीं करना चाहते, ना रहा करें, उनको अदालत में पेश कर दें। लेकिन आप कहते हैं कि अदालतें जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती, वो तो दहशतगर्दों को रहा कर देती हैं। तो अगर आप अदालतों पे अदम एतमाद कर रहे हैं तो फिर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि आप में और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई फ़र्क नहीं। इसलिए दोबारा यही कहूँगा कि ये आईन पाकिस्तान है, इसके हर आर्टिकल पर अगर आप अमल दरामद करना शुरू कर दें और इसका थोड़ा सा एहतराम करें, जो कि आप नहीं करते, अगर आप इस आइन का एहतराम करेंगे पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।